Hello students, welcome back in your own YouTube channel Study Zone Passion for Learning. As we are doing our second chapter of statistics for economics, that is collection of data. So today we proceed to the same chapter. Today's topic is modes of data collection, or we can say that how basic data is collected. In the previous lecture, we discussed the types of data, that is primary data and secondary data, and from where we collect these data, that means the sources of data. Now, in this lecture, we are going to know about the well-known methods of collecting primary data. Now students, what do you mean by primary data? Data collected by the investigator for his own purpose and for the first time it is collected, so this data is called the primary data, and these data are taken from primary sources also. So these data are called primary data, and now in this lecture we are going to discuss the methods of collecting primary data. Some well-known methods of collecting primary data are: first, direct personal investigation. Second is indirect oral investigation. Third, information from local sources or correspondents. And fourth one is information through questionnaire and schedules, in which we are going to discuss the two methods, mailing method and Animator method. So let's start with the first method, that is direct personal investigation. What do you mean by this? Just look at the name, it tells you the meaning itself. Direct personal investigation means direct. What do you mean by direct here? You know very well the meaning of the word direct. Now personal means an individual. So जब डायरेक्ट किसी से इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. सपोज आई वांट टू नो योर personal details like father's name, mother's name, qualification, height and weight, then I will personally contact you and ask these details to you. So this is direct personal investigation. Now let's see the meaning in the book. Direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants. Or in other words, the investigator establishes direct relation with the person from whom information is to be obtained. अब देखो, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके पास जाऊंगी और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी जिसकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन उसी से मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ. तो ये प्राइमरी डेटा है. और ये इन्वेस्टिगेशन कितनी सक्सेसफुल होगी ये भी इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करती है कि वो कितना डिलीजेंट है और वो कितना एफिशिएंट है, इम्पार्शियल है, टॉलरेंस होगा आपके इन्फॉर्मेंट के साथ. तो ये उसी पे डिपेंड करता है. नाउ वी सी द suitability of this method. That means where this method is suitable or applicable. Okay, so it is suitable on small area or a limited area. That means that area which is not very large. Second suitability is a greater degree of originality is required in this method. Third one is जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, आप पब्लिकली उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करोगे, वहाँ सुटेबल है. फोर्थ इज़ हाई एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड इन दिस मेथड. And the last one is when direct contact with the information is required, जहाँ पर आपको पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि उसके पास अच्छे से और करेक्ट इंफॉर्मेशन आ सके, वहाँ सुटेबल है. So here these are the method. This method is suitable here only. अब इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है. So let's see
First, the merits of this method. Merit. First merit is originality. I am collecting data to each and every individual by establish direct relation to them. So when we collect data to them personally, then it will be original, and this is the first merit of direct personal investigation. Now the second merit is accuracy. 100% accuracy we get from this method. If informants from that information, okay, thus in this method data are fairly accurate when personally collected. Okay, so that means 100% accuracy is there. So this is the merit of this method. Third is reliability. मैं इजीली उस डेटा पर रिलाई कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो डेटा मैंने ही कलेक्ट किया है. तो जो रिजल्ट्स मेरे सामने आया मुझे पता है वो सही है क्योंकि वो मैंने ही निकाला है. सो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज़ नॉट डाउटेड हियर. फोर्थ merit is related information. When in direct contact with the informants, the investigator may obtain other related information as well. Like, I have to collect the record of height, weight, father's name, mother's name. तो मैं उसके साथ साथ उसके प्रीवियस क्लास का रिजल्ट, हॉबीज़ भी पूछ लूँगी. तो ये क्या हो गई? ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. ओके, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है यहाँ पर. तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते मैंने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उस बंदे की निकाल ली है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेरिट ऑफ दिस मेथड. नेक्स्ट मेरिट इज़ यूनिफॉर्मिटी. क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन हर इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करता है, मतलब जिस जिससे उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके पास जाके डेटा कलेक्ट करता है, तो डेटा कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा. डैट मीन्स यू डिड नॉट गेट एनी डिफरेंस इन डेटा, यू गेट ऑलवेज द यूनिफॉर्म डेटा. तो इससे हम डेटा के यूनिफॉर्म होने की वजह से आपस में डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं. नाउ द लास्ट मेरिट इज़ इलास्टिक. One more, this is the last merit, elastic. That means what do you mean by elastic here? Elastic का मतलब होता है changes होना. So this method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustment in his set of questions. That means जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत बार चाहे तो अपनी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकता है अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि जैसे वो चाहे वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है. और अगर उसको कुछ चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकता है. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द demerits of this method. As this method having some merits, so demerits also. Okay, so one or the first demerit of this method is difficult to cover wide area. Direct personal investigation becomes very difficult when the area of the study is very wide. अगर हमें ज़्यादा लोगों से या जो हमारा एरिया है वो स्टडी का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा लोगों के पास जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी और उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम मनी स्पेंड होगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया. सेकेंड डिमेरिट इज़ पर्सनल बायस. ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन होता है किस चीज़ के लिए? पर्सनल बायस के लिए. क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो बायस्ड हो, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसने काफ़ी ज़्यादा बायसनेस आ सकती है. एंड बाय दिस डेटा मे लूज देयर क्रेडिबिलिटी ऑल्सो. थर्ड डिमेरिट इज़ कॉस्टली. दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव in terms of time, money and efforts involved. As in this method we collect data personally, so this is very expensive method क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मनी भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगेंगे क्योंकि हम पर्सनली जाकर डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं. लास्ट डिसएडवांटेज इज़ लिमिटेड कवरेज. इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ ग्रेटली स्मॉल और इस वजह से जो रिजल्ट्स होते हैं वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हो सकता है ये गलत कंक्लूजन दे.
because in this method you are not able to cover the wide area as you have to collect data by establishing direct contact to them. So this is the first method, that is direct personal investigation. Now we talk about the second mode of data collection, that is indirect oral investigation. What do you mean by this method? So इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये नेम से ही क्लियर हो रहा है इसका मीनिंग. वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है, यानी कि आप खुद डायरेक्ट डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते इसमें. बेसिकली इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस in which the information is not collected from the people, those who are directly related to that particular study, rather than it is collected from the people, those who are in the possession of such kind of information regarding to those concerned parties. ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है. इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इनडायरेक्ट वे में. मतलब आपको जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस पर्सन से कलेक्ट नहीं करते, बल्कि थर्ड पर्सन से कलेक्ट करते हुए इन्फॉर्मेशन को. सो हियर यू आर नॉट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली, बट you collect information in an indirect way. So that is indirect oral investigation. Let me take this an example. Suppose आपको किसी फैक्ट्री के वर्कर्स की कंडीशन पता करनी है, पर आप वर्कर से डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, बल्कि आप उसके मालिक यानी एम्प्लॉयर्स से पूछ रहे हो. तो ये मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है. सो लेट्स कंक्लूड दिस. In this method, we are not collecting information directly to the informants, but from the third person, or we can say that third person here, the witnesses. Okay, so we collect information here from the witnesses. So that method is called indirect oral investigation. This method is mostly used by government or non-government committees or commissions. Okay, now we see the suitability of this method. First, this method is suitable particularly when the field of investigation is relatively large. ये method totally direct personal investigation से के opposite होता है. Okay, now the second suitability is it is not possible to have direct contact with the concerned informants. हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड तब चूज़ करते हैं जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फॉर्मेंट से नहीं कर पाते हो. उस पर्सन से, जिस पर्सन से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर ये मेथड सुटेबल होता है. थर्ड, द कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर not capable of giving information because of their ignorance or illiteracy. मतलब आपको जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इंफॉर्मेशन देने में केपेबल नहीं है, या तो वो इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, या बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और बिकॉज ही और शी इज़ इलिटरेट. सो दैट्स वाई हियर इट इज़ सुटेबल. फोर्थ सुटेबिलिटी इज़ इन्वेस्टिगेशन इज़ सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन. मतलब अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है, और मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे सिर्फ एक्सपर्ट दे सकते हैं, तो उस केस में भी ये मेथड यूज़ मैं कर सकती हूँ. सो हियर वी कैन यूज़ दिस मेथड. नाउ वी टॉक अबाउट सम मेरिट्स ऑफ दिस मेथड. सम नोटेबल मेरिट्स ऑफ दिस मेथड्स आर: फर्स्ट, it wide coverage. This method is applicable even where field of investigation is very wide. Second merit is less expensive. This means it is relatively a less expensive method as compared to direct personal investigation. क्योंकि आप पर्सनली जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट वे में ओरल इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो ये लिटिल बिट लेस एक्सपेंसिव होगी. Number 3 is expert opinion.
इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी ले सकता है and thereby they can make his information more reliable. Fourth is free from bias. This method is free from bias of the investigator. Suppose मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मेरे लिए कोई भी बायस नहीं होगा क्योंकि मैं उस पर्सन को नहीं जानती हूँ और जानती भी हूँ तो मैं उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही हूँ, तो मैं किसी भी तरह का भेदभाव इन्फॉर्मेशन में नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन यूज़ होती है. लास्ट मेरिट ऑफ दिस मेथड इज़ इट इज़ रिलेटिवली सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन. सबसे सिंपल मेथड है डेटा कलेक्शन का. नाउ वी टॉक about the demerits of direct personal investigation. First demerit is less accurate because here you are not collecting information directly from the informants but you collect information from the witnesses or from the third party, so it is less accurate. Second is biased. In this method there is a chance of personal bias. क्या पता आप जिस पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो विटनेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन से, यानी जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है उससे आपकी सपोज़ नहीं बनती तो वो आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है. सो दैट्स वाई दिस मेथड देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ बायसनेस. लास्ट एंड नंबर थर्ड डीमेरिट ऑफ दिस मेथड इज़ डाउटफुल कंक्लूजन. इस मेथड से आप जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे तो उससे जो भी आपके कंक्लूजन होंगे वो डाउटफुल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस. नाउ वी टॉक अबाउट सम डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. द फर्स्ट एंड foremost difference is direct personal investigation establish direct contact with the informants, whereas indirect oral investigation obtained by contacting other than those about whom information is sought. उसमें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से आप इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ स्मॉल. वो वाइड एरिया को नहीं कवर कर सकता क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसको इस्टेब्लिश करना होता है, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जनरली प्रेफर करता है वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिलेटिवली large. Third one, if we talk about trained investigator, then if you collect information by direct personal investigation, then the investigator must be very well versed in the language, culture, and he must be diligent, patient with the informants who collect information tactfully. So these all features are involved in trained investigator, which is required in direct personal investigation, whereas such kind of features are not required in indirect personal investigation. Last difference is direct personal investigation is relatively costlier, क्योंकि अभी हमने बात करी हम डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इतना कॉस्टली नहीं होता है. Now we will discuss the third method or mode of primary collection, data collection, that is information from local sources or correspondents. So it is also cleared by the name. Information from the local sources, कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हो? लोकल सोर्सेज से और कॉरस्पॉन्डेंट से. नाउ हु आर कॉरस्पॉन्डेंट? द रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट आर हियर द correspondents. So in this method we collect information from local sources or from the correspondent. Thus in this method investigator himself not collect the information, so here investigator appoints local persons from different areas and these local person or correspondents work for the investigator. किसके लिए काम करते हैं? इन्वेस्टिगेटर के लिए. दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर. दैट मीन्स इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता,
वो डिफरेंट प्लेसेस में से लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है और वो इन्वेस्टिगेटर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, न्यूज़ रिपोर्टर। आपको पता ही है न्यूज़ रिपोर्टर कौन होते हैं, जो न्यूज़ हमें दिखाते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेसेस की क्या वो खुद जाकर सारी न्यूज़ कलेक्ट करते हैं? नहीं, उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर रखे हैं और वो कॉरेस्पॉन्डेंट पर्टिकुलर एरिया की न्यूज़ इन्वेस्टिगेटर को देते हैं और इन्वेस्टिगेटर ये सारी इंफॉर्मेशन टीवी में ब्रॉडकास्ट करता है। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। नाउ we discuss some suitability of this method, where this method is suitable. So this method is suitable when regular and continuous information is needed. जहाँ पर भी हमें रेगुलर या फिर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वहाँ ये मेथड एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आप 1 महीने बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उस जगह पर यह मेथड सुटेबल नहीं होगा। सेकेंड वन इज़ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। क्योंकि पूरे देश की इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगी इतने सारे स्टेट्स और सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, देन इन दैट केस दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल। Third suitability is the information is used by journals, magazines, radio, TV, etc. Last is a very high degree of accuracy of information is not required. ये मेथड वहाँ एप्लीकेबल होगा जहाँ पर 100% एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर हम इस मेथड को एप्लीकेबल और सुटेबल हो सकता है। Now we talk about the merits and demerits of this method. First we discuss the merits of this method. This method is quite economical in terms of time, money और efforts involved. ये इकोनॉमिकल इसीलिए है क्योंकि इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए जो टाइम और मनी लगाना चाहिए उतना नहीं लगता, इसीलिए ये इकोनॉमिकल है। Second merit we have already discussed that this method allows fairly wide coverage of investigation. अभी हमने बात करी कि इस मेथड की मदद से हम वाइड एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ दैट correspondent which are appointed by the investigator, they give regular information to the investigator. Continuity में वो information देता है, as the investigator had appoint those person on a particular area. Now the fourth merit of this method is particularly applicable तब होता है जब हमें कोई स्पेशल पर्पस का इन्वेस्टिगेशन करना हो। जैसे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइस कोटेशन के बारे में, यानी डिफरेंट ग्रेन मार्केट से मुझे प्राइस कोटेशन चाहिए जिससे कि मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर सकूं, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकूं एग्रीकल्चरल प्राइसेस का। सो दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ये सारे मेथड्स एप्लीकेबल और सुटेबल होते हैं। ओके, एंड दीज आर द merits of this method. Now we will discuss the demerit of this method. First is loss of originality. Data's originality is sometimes sacrificed or compromised because of lack of personal contact. क्योंकि इस मेथड में हम पर्सनल कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते तो डेटा ओरिजिनल नहीं हो पाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती है, कमी होती है यूनिफॉर्मिटी की, बिकॉज हियर द डेटा इज़ कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, सो इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। थर्ड डिसएडवांटेज इज़ पर्सनल बायस. This one is
the method which suffers from personal bias of the correspondents. इस method में कभी कभी biasness भी होती है, and in this case bias of correspondents exist because he will collect the information and he give that to the investigator. तो इस केस में correspondent किसी भी तरह का भेदभाव रखते हैं जिनसे वो information ले रहे हैं, तो जो data वो कलेक्ट कर रहे हैं वो भी बायसनेस से सफ़र होगा. फोर्थ डिमेरिट इज़ लेस एक्यूरेट. डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं डेटास को. लास्ट डिमेरिट इज़ डिले इन कलेक्शन. Okay, generally there is a delay in the collection of information through this method because in this method first correspondent collects information, then this information is given to the investigator. So by this there is a possibility of delay in collection. Last method of collecting primary data is information through questionnaire and schedules. This method is in which we will collect basic information by preparing a questionnaire keeping in view the objective of the inquiry, and by consideration that objective he prepares the questions. इस objectives को ध्यान में रखते हुए questions बनाए जाते हैं. मतलब इस method में हम data questionnaire या फिर schedule से collect करते हैं और इसमें हम orally data को collect नहीं करते. सपोज़ आप जब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट कंपनी विल गिव यू अ क्वेश्चनेयर ऑन योर मेल इन विच number of questions will be there which ask you about the product and about the feedback, or at last they will ask you any improvement or suggestions. You want to give the rating also. Okay, by that they collect the data from you. So all these are involved in this method, and which is the name of the method is information through questionnaire and schedules. So there are two ways of collecting information on the basis of questionnaire. First is mailing method, second is enumerator method. Let first we discuss the mailing method. What do you mean by mailing method? Under this method, questionnaires are mailed to the informants, and along with that a letter is attached in which the purpose of inquiry is mentioned. इसके साथ हम उन्हें ये भी एश्योर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें देंगे उसको एक सीक्रेट की तरह रखा जाएगा, उसको हम लीक आउट नहीं करेंगे किसी के साथ. So now the information noted down all the answers against the question and returns to the completed questionnaire to the investigator. So this is the meaning of mailing method. Now where this method is suitable? This method is most suited when the area of investigation is wide. वाइड लेवल पर जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा सुटेबल होता है. सेकेंड, एंड द इंफॉर्मेशन आर एजुकेटेड ऑल्सो, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्वेश्चनेयर को फिल नहीं कर पाएंगे. सो इन दीज टू कंडीशंस दिस मेथड इज़ सुटेबल. नाउ वी डिस्कस द मेरिट ऑफ दिस मेथड. फर्स्ट मेरिट इज़ इकोनॉमिकल. ये काफ़ी इकोनॉमिकल है टाइम, मनी और एफर्ट्स की बेसिस पर. ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है. सेकेंड मेरिट इज़ ओरिजिनल. देयरफॉर ओरिजिनल तो है, दिस मेथड इज़ ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल ऑल्सो. ये रिलाई भी कर सकते हैं बिकॉज हियर द इंफॉर्मेशन इज़ ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन्स देमसेल्फ. सो दिस method is more original and we can rely also in this method. Third one is this method allows wide coverage of the area. This we also discuss in the suitability. Okay, now we discuss the demerit of this method. First is lack of interest. इन्फॉर्मेंट इंटरेस्ट नहीं लेते क्वेश्चनेयर को फिल करने में और इसीलिए वो रिटर्न भी नहीं करते क्वेश्चनेयर को, और
जो लोग रिटर्न करते हैं वो कई बार इनकम्प्लीट आंसर्स फिल कर देते हैं, तो डेट्स वाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पर। सेकेंड इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इन दिस मैथड देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें जो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कभी कभी प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, किए जाते हैं, और उन क्वेश्चन का तो अब आप उन क्वेश्चन को चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है उन क्वेश्चन का, तो हम उन क्वेश्चन को भी चेंज नहीं कर पाते जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उनके हिसाब से। तभी इस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। सेकेंड इज़ लिमिटेड यूज़। सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही क्वेश्चनेयर के आंसर्स दे पाएंगे, अनएजुकेटेड पर्सन इसके आंसर्स नहीं दे पाएंगे। मेलिंग मेथड होता है तो उनको इतना नहीं नॉलेज होती कि हाउ टू मेल एंड हाउ टू गिव द आंसर्स ऑफ क्वेश्चनेयर। फोर्थ, demerit is biased. If the information are biased, then the information will also be biased. इन्फॉर्मेंट खुद बायस्ड होगा, भेदभाव करेगा, तो इन्फॉर्मेशन भी बायस्ड आएगी उसके पास। लास्ट डिमेरिट ऑफ दिस मेथड इज़ लेस एक्यूरेसी। जनरली जो कंक्लूजन हम निकालते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर वो लिमिटेड एक्यूरेट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनमें डिफ़िकल्ट हो और उनका आंसर देने में वो इन्फॉर्मेंट सक्सेसफुल नहीं हो, तो एक्यूरेसी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। And these are the merits and demerits of mailing method. Now we will discuss the second way of collecting information on the basis of questionnaire, that is enumerators method. ये एन्यूमरेटर कौन होते हैं? हु आर द एन्यूमरेटर? ये वो पर्सन होता है जो क्वेश्चनेयर लेकर लोगों के घर घर जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सो इन दिस मेथड एन्यूमरेटर इज़ नॉट अ इन्वेस्टिगेटर। जब इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर खुद ना जाकर कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर देता है जो पर्टिकुलरली एरिया में जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो वो जिन पर्सन को अपॉइंट करते हैं उनको हम यहाँ पर एन्यूमरेटर कहते हैं। लेट्स वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। यू ऑल आर हर्ड द वर्ड सेंसस, जनगणना जिसे हम कहते हैं, जो इंडिया में हर 10 साल के बाद की जाती है। इस केस में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कितने हैं। तो गवर्नमेंट क्या हुआ यहाँ पर? इन्वेस्टिगेटर हुआ। और एन्यूमरेटर वो पर्सन हुए जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और ये एन्यूमरेटर क्या करता है? हर घर में जाकर गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सो इन दिस मेथड अ क्वेश्चनेयर इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेज द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनेयर। एन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट से खुद ही क्वेश्चन पूछता है और खुद ही आंसर स्केड्यूल्स में लिखता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन्यूमरेटर्स मेथड। ओके, मेलिंग मेथड में ये चीज़ नहीं थी। मेलिंग मेथड में जो पर्सन था वो खुद सारे क्वेश्चनेयर को फिल करता था, जबकि एन्यूमरेटर मेथड में ऐसा नहीं होता। एन्यूमरेटर मेथड में जो एन्यूमरेटर है वो खुद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल करता है जो इन्फॉर्मेंट्स उसे बताते हैं। नाउ वी सी द सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल वेयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत लार्ज होगा। नंबर सेकेंड इज़ द इन्वेस्टिगेटर नीड स्पेशलाइज एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर। ओके, इसमें स्किल इन्वेस्टिगेटर और स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले पर्सन्स चाहिए होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। थर्ड वन इज़ द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटर है उसको लोकल लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए और उनके इन्फॉर्मेंट्स के कल्चर नॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर वो उनके रिकॉर्ड्स को नोट कर पाएगा, उनके आंसर्स को नोट कर पाएगा। सो दीज आर द conditions where it is suitable. Let me see the merit of this method. First, wide coverage.
अभी हमने डिस्कस किया। और इन दिस मेथड इवन इलिटरेट कैन गिव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वाइड कवरेज होता है, इलिटरेट भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि जो आंसर्स कलेक्ट करने वाला एन्यूमरेटर होता है वो अपने आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेगा। सेकेंड वन इज़ एक्यूरेसी। देयर इज़ अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी in the result, because in this method you himself collect the information from the informants and collect directly also, so the results are accurate. Third is personal contact. जैसे मेलिंग क्वेश्चनेयर में पर्सनल कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी, वैसे यहाँ पर नहीं की जाती। देयर इज़ अ पर्सनल कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेशन इन दिस मेथड। मेलिंग मेथड में डायरेक्ट क्वेश्चनेयर को इन्फॉर्मेंट फिल करता था, जबकि यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट की मदद से एनिमेटर पर्सनल कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज़ एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स आर ऑब्टेन। Fourth one is impartially. This method is impartial also, because the enumerator themselves do not need the required information, so they are impartial to the nature information that they obtain. So इस method में partiality के chances नहीं होते हैं. Last is completeness. एन्यूमरेटर खुद स्केड्यूल को फिल करता है तो क्वेश्चनेयर पूरी तरह से कंप्लीट होती है, और कंप्लीटनेस यहाँ की इसकी लास्ट मेरिट है. Now we discuss the demerit of this method, enumerator's method. First demerit is expensive. This is very expensive method of investigation because of the involvement of trained investigator. हमें बहुत ज़्यादा trained investigator की ज़रूरत होती है. बिना trained investigator के हम क्वेश्चनेयर को फिल नहीं करवा सकते, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है. और इसीलिए सेंसस का मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था. सेंसस हर 10 साल में होती है, हर साल में हर 1 ईयर के अंदर हम सेंसस नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. सेकेंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमेटर्स. यहाँ पर इसमें एनिमेटर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है. अगर आपके पास एनिमेटर नहीं है तो आपको डेटा कलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी. थर्ड वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग. एनिमेटर मे नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको पहले से ही ट्रेनिंग मिलती है, पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, और उससे ट्रेनिंग करेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का. नेक्स्ट ड्रॉबैक इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इसको फॉलोअप नहीं करती. सो दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. लास्ट वन इज़ partial. If the enumerators are biased, then the data will also be not be accurate. अगर इन्वेस्टिगेटर खुद biased होगा तो वो डेटा भी क्या होगा, उसके लिए biased create करेगा. Now we discuss the last topic of the lecture, that is construction of questionnaire and schedules and their qualities. In the context of collection of primary data, construction of questionnaire and schedule has special significance. The set of questions in the questionnaires and schedules are similar. दोनों में, चाहे वो क्वेश्चनेयर हो या स्केड्यूल हो, दोनों में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस सिमिलर होते हैं. Only the difference is that in questionnaire the entire information is recorded by the informants themselves. In the schedule, on the other hand, the information as supplied by the informants is recorded by the enumerator. This is the major difference between the schedule and a questionnaire. Now we talk about the qualities of a good questionnaire. किस तरह से एक अच्छी क्वेश्चनेयर बनानी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट क्वालिटी इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनेयर शुड बी अ लिमिटेड एज पॉसिबल. ये नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर दो उस क्वेश्चनेयर में, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, और आपकी जो क्वेश्चनेयर है वो पर्टिकुलर पर्पस ऑफ इंक्वायरी को फुलफ़िल करनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए. सेकेंड इज़ सिंप्लिसिटी. जो लैंग्वेज होना चाहिए क्वेश्चनेयर का, क्वेश्चंस का, वो सिंपल होना चाहिए, लूसिड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. और क्वेश्चंस भी बहुत शॉर्ट होने चाहिए, ना कि बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होने चाहिए. मैथमेटिकल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए. Third quality is proper order of the question. Question must be placed in a proper order or in a sequence. Fourth one is no undesirable question is asked by the person investigator. Here undesirable question or personal questions must be avoided. यहाँ पे क्वेश्चंस जो है शुड नॉट ऑफेंड द इन्फॉर्मेंट्स. ओके. फिफ्थ वन इज़ नॉट कंट्रोवर्शियल. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की कोई चांस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए. सो क्वेश्चन शुड बी सच
एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शली, जो बिना पार्शलिटी के आंसर्स दिए जा सके, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ना कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को पूछना चाहिए। 6th इज कैलकुलेशन। क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन है तो वो खुद उसको कर ले, इन्फॉर्मेंट्स के लिए नहीं छोड़े। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज़ प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। सम क्वेश्चन भी आस्क फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन अ ट्रायल बेसिस, कुछ ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन पूछने होते हैं, है ना। सो इफ़ द आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफ़िकल्टी, अगर इन्फॉर्मेंट्स को उनके आंसर्स देने में डिफ़िकल्टी होगी तो उनको चेंज कर देना चाहिए, रीफ्रेम कर देना चाहिए। सो ऐसी टेस्टिंग को हम प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे कहते हैं, और ये सम टाइम ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। नेक्स्ट क्वालिटी इज़ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चनेयर को भरने के लिए, फिल करने के लिए कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, एडवांस में दे देने चाहिए, जो लिखे होने चाहिए क्वेश्चनेयर पे। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चन में बी आस्क्ड विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन, जिसको आप क्रॉस एग्जामिन कर सको, ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए, तो एक अच्छी क्वेश्चनेयर बनती है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। लास्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पॉन्डेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनेयर कंप्लीटेड इन ऑल द रिस्पेक्ट। एक रिक्वेस्ट ज़रूर होना चाहिए, उसमें रिक्वेस्ट नोट होना चाहिए कि प्लीज़ कंप्लीट दिस क्वेश्चनेयर एंड सेंड बैक टू अस, ताकि वो इन्फॉर्मेंट उसको कंप्लीट करके आपके पास भेज सके। एंड द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय हिम विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। उसको ये एश्योरिटी दिलानी चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हो, डेट कैप टू बी सीक्रेट, ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। सो दीज आर सम डिजायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड questionnaire which we have to include while making the questionnaire. I hope you understand the concept of today's lecture, but if you have any query, drop your comments on the comment box. That's all for the today's session. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.